तो बच्चा बायोलॉजी पढ़ने आता था हमसे, वो भी क्लास 10 का ही था। तो हुआ क्या, एक बार उसी में से एक बच्चा था जो बड़ा बदमाश था, ठीक है ना, लेकिन क्लास में वो ठीक था वो। और फिर हमारा क्लास, हम ट्यूशन करने का, हम अपना ट्यूशन करने जाते हैं कॉमर्स का, तो वो और हम साथ जा रहा था, ठीक है ना, साथ ही जा रहा है। हम 12 का बच्चा, वो 10 का बच्चा, तो कितना बड़ा होगा। तो जा रहा है, तो उसके एक फ्रेंड बीच में आया, तो वो भी साथ में जाने लग गया। तो बोले एडू कौन है, उसको पूछता है, मास्टर है वो। ये मास्टर सस्टर बदले पे आप पिटीम बोले, मास्टर हम लोग बोले, हाँ वो ऐसे बोल रहे, ठीक है ना। अब वो ऐसे हमको ऐसे दिखता है कि बोला कोई बात नहीं, चलो यार चलता है, तो ऐसा होता है। हम लोग वहाँ पे तो बहुत ऐसी चीज़ होता है। तो वट एवर, सो क्लास तो था नहीं, तब भी क्लास किया हम लोग, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो बीएससी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, है ना। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कन्फेशन, ओके, ठीक है। कन्फेशन, आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज कन्फेशन, यस ऑनलाइन। कन्फेशन पता होगा, है ना, बिकॉज यू हैव रेड सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी ऑल्सो, है ना। Confession to magistrate, how it can be recorded under section 281 also given. So now, first of all, what is confession per se? What is confession? What is confession? Yes, Angana. The statement which shows the guilt of the accused, confession. Okay, online, any other view or any other point of view? Online, confession, क्या है confession? What is confession? पश्चाताप। Yes, online, say something. Okay, accepting the guilt. Okay, whether a confession can be written? Yes, so I have said कि confession means admitting the guilt. So my next question is whether confession can be written. Written. Yes. Can be oral also, it can be written also. What to हो गया, ठीक है। Now how there is either it can be written or oral. Okay. To whom? By whom? See, don't forget that we are going through these sections because it is under what? Relevancy of facts. Relevancy of facts के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो whatever we are studying like confession, तो confession is what? A relevant fact. Unlike other relevant, it is also a relevant fact. Now, confession is admitting the guilt. Okay. Now it can be written also, it can be oral. To whom? To whom? Magistrate. What if a person admitting his guilt in front of his friend? Whether it is relevant or not? ऑनलाइन, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोल दिया हाँ मैंने मारा था उसको, तो इट इज कन्फेशन और नॉट? यस। ओके, इसने बोला सर डॉक्टर के पास नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन हो जाएगा। इज इट? मान लो एक डॉक्टर के पास एक आदमी गया, जाके बोला देखिए मेरे हाथ में लग गया। कैसे लग गया? यार उसको मैं चाकू मारा था, उसको चाकू मारते हुए मुझे लग गया। वो तो मर गया लेकिन मुझे लग गया। ओके, नाउ वेदर
in the court of law whether the statement of the accused can be proved. Now the doctor wants to be a witness like that. वो ये बोल सकता है ना कि he told me that कि उसने एक मर्डर किया है, उसका बॉडी उसने वहाँ फेंका है. तो whether it is relevant, whether it can be used, no. Why, Anandita? It can be. Now Sneha is saying कि it's a professional bar. It's a professional bar. Doctor cannot give evidence. Where it is written, Neha? Whether you are talking about section 126, Neha, of the Purana evidence. But there is a professional communication, na? You are talking about professional communication, na, my dear? Yes? Okay. Then 126 of Evidence Act is now 132. 132. Come to 132. Neha, come. Neha, read. Just 2 words. Read just the 2 words. Not more than that. बस हो जाएगा. बस 2 वर्ड. नो एडवोकेट, है ना? क्या बोला? नो एडवोकेट. नेहा जी, तो इसका मतलब दिस सेक्शन इज कन्फाइंड टू व्हाट? एडवोकेट्स, है ना? तो स्टेटमेंट गिवन टू द डॉक्टर इज नॉट बार्ड बाय 126. एम आई राइट? ओके, कम बैक. कन्फेशन. Okay. When we say confession, it means admission of guilt. How? Written or oral. To whom? Magistrate. But apart from magistrate, if it is given to any other person also, a private individual also, any person, it is also relevant as extra judicial. Now, the general rule is that confession can be made whether before a magistrate or before any other person. It's a general rule. Now, when we go through the relevant provisions, we will come to know which confessions are not relevant. They are not admissible, sorry. Are you getting my point or not? कि जब confession given to police officer या confession given to not police but for other person but under threat, coercion. Are you getting my point or not? Why? What is the root to this? This is article. क्या है? कौन सा आर्टिकल था? सेल्फ इंक्रिमिनेशन 3, है ना? उसमें क्या बोलते हैं? No one shall be compelled to be a witness against himself. But the theme line of the article, yes or no line? Yes. It says no one shall be compelled. Okay. Compelled. Meaning thereby, if there is no compulsion, then one can be a witness against himself. Am I right? So it is not in contravention to the fundamental right. If someone is confessing, that too also voluntarily, then it's a good piece of evidence. Are you getting my point or not? Because article only restricts self-incrimination, and when it amounts to self-incrimination, when you are giving evidence against yourself, that too also under compulsion. Okay, so the general provision will say कि no confession can be made under threat of inducement or coercion or any kind of promise. General rule. Secondly, it also says confession to police officer is also not admissible. Why? अगर एक आदमी अगर अपने मन से वॉलंटरीली जाके पुलिस को बोल रहा है कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया है, तब भी वो क्यों नहीं है? मुझे पैसा नहीं,
It is not self-incrimination, not per se. But why it is not? Because the legislature also know the peculiar character of the investigation agency. And again, if you go through the separation of power also, if you go through the principle of natural justice also, if the investigation officer got the opportunity to create evidence, that too also from the accused, it is very easy for them. Are you getting my point or not? That's why statement also made to a police officer has no relevance. We have read section 161. So again, at the same time, if police feels that yes, he is willing to give confession, then police can brought him to the magistrate. Are you getting my point or not? तो ऐसा नहीं है कि कोई कन्फेस करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा, कर पाएगा. तुमको माने कि हम ट्रायल में क्यों जाए, हम कन्फेस करते हैं, हम जाता है, पहले ही चला जाता है. बट when we come to admissibility of such kind of confession, then the admissibility will be of before a magistrate, not before a police officer. So the legislature explicitly giving you the provisions that confession to police officer is not relevant. Along with the same, it also gives the confession during police custody is also not relevant. Sometimes you are with the police, or sometimes you are in the custody of the police. Both have a difference. How? When you are with the police, the ambit is small, and you are in the custody of the police, the ambit is larger. Say for example, you are an accused, you got hurt also while in firing, you also got grievously hurt. तुमको पुलिस कहाँ लेके गया? हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है. अब पुलिस को क्या करता है डॉक्टर? बाहर ही रख देता ना, भाई आप लोग बाहर रुकिए, है ना, पेशेंट को हम देखते हैं. वो पेशेंट को देखने लग गया, पुलिस बाहर दरवाजे में खड़ा है, एंड आप पेशेंट को देख रहे हैं, मतलब वो एक्यूज को देख रहे हैं. अक्यूज ने उसी समय कुछ बोल दिया कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे इसको मारा था. तो वेदर इट इज रेलिवेंट, जनरली इट इज रेलिवेंट बिकॉज कन्फेशन टू डॉक्टर इज ऑल्सो रेलिवेंट. बट हियर द लॉ डीम इट दैट ही इज इन द पुलिस कस्टडी, बिकॉज पुलिस बाहर है. तो जो फियर है वो है. लॉ तो इस एक्सटेंट तक जाता है हमारा मतलब जो इसका जूरिस्प्रूडेंस जो है कि से फॉर एग्जांपल ए पर्सन इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर पर से, ही इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर, बट ही इज वेयरिंग खाकी वर्दी. होता है ना, नहीं होता है. मान लो अगर पोस्ट ऑफिस का अगर सिक्योरिटी पर्सनल है तो खाकी वर्दी ही पहनता है. कोई होम गार्ड है वो भी खाकी वर्दी पहनता है, नहीं पहनता है. तो इफ अ पर्सन गिव्स स्टेटमेंट टू अ पर्सन हु इज वेयरिंग खाकी वर्दी, then later on it cannot be said कि it is not to a police officer, it is someone else. But the law will check the impression of the accused person while giving the statement. Are you getting my point or not? Say for example in India, we don't need the star to know ki whether he is a police or not. If someone is wearing khaki wordi, in fact you and me also get okay he is a police wala. Am I right or not? So there are judgments where court says ki yes, he is under the impression that he is a police. So there may be some threat. Influence should not be a physical kind of influence. It is a psychological influence. Are you getting my point or not? समझा या नहीं समझा? कभी पुलिस स्टेशन जाएगा ना और पुलिस जब तुमको बोलेगा ना, बताओ दरवाजा लगाओ, दो डंडा दो, आत्मा बाहर निकल के आ जाएगा तुम्हारा. आई एम नॉट किडिंग. आत्मा सच्ची में बाहर निकल के आ जाएगा. फिर आदमी कुछ भी बोल देगा उसको. एक निर्दोष आदमी से भी वो कन्फेशन ले सकता है क्योंकि उसको अपना केस बनाना है ना. तो दैट्स व्हाई कन्फेशन टू पुलिस और ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी इज आउटराइटली रिजेक्टेड. But if through the confession police discover something, if from the statement of the accused, which includes confessions also, if from such a statement, if police or the investigation officer discovers something, then though the statement is not relevant as a confession, but his knowledge about the place, the discovery, these all are relevant. Meaning thereby, say for example there is a theft, एक चोर था, चोर को पुलिस पकड़ लिया, पुलिस पकड़ के उसको पूछा क्या हुआ बाबू, तो उसने पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया कि यस आई वेंट टू हिज प्लेस, आई स्टोल दिस ऑयल ड्रम्स
है ना, एंड आई बरीड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. Let's go with me, let's come with me, I will show you where I have buried that particular or hide that particular oil drums. उनको लेके गया पुलिस वाले को, डिस्कवरी करवाया, ड्रम्स निकाला. ये जो सारी चीज़ें हैं, डिस्कवरी एंड एवरीथिंग, दीज आर रेलिवेंट. दो हिज स्टेटमेंट कि आई कमिट थेफ्ट, इट इज़ नॉट रेलिवेंट. But his discovery, his knowledge about the place and the discovery of the place and the discovery of the materials, these all are relevant. Are you getting my point or not? क्या पता, बहुत बार ऐसा होता है दोस्त, इसी चीज़ का लेके लोग, अभी जैसे तुम लोगों ने ये वाला केस पढ़ा था ना, पढ़ा क्या, सुना होगा ना, ये जो अभी एक एक्यूजिशन था बंदना कलिता ने क्या, तो उस पर क्या हुआ, उसने पुलिस को भले कन्फेशन दिया हो बट वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो जो लेके गई, डिस्कवरी करवाया, दीज आर रेलिवेंट. लेकिन इसमें भी अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेगा आगे. इसमें भी एक बात है, से फॉर एग्जांपल एक ओपन फील्ड है, क्या है, ओपन फील्ड है. पुलिस अपना चार्जशीट में लिखता है कि अक्यूज हमें इस फील्ड में लेके गया, इस फील्ड से ये ड्रम्स डिस्कवर करवाया. तो कोर्ट ये भी देखता है कि क्या ये ओपन फील्ड इतना ओपन है कि इट इज इजीली एक्सेसिबल. इफ इट इज इजीली एक्सेसिबल, वन कैन प्लांट हियर आल्सो. Means the knowledge of the discovery which is in the hand of the police officer should be come from the accused. Then only it is relevant under 27, the relevant section. There may be possibility or not कि किसी और से भी तो पता चल सकता है या नहीं. पॉसिबल है ना कि ओपन फील्ड में अगर कोई सामान पड़ा हुआ है तो किसी बाहर वाले लोगों से पता चल सकता है. Are you getting my point or not online? Where I am? मुझे पैसा नहीं ए रास्ता जो उठाए से रास्ता पर जो तुम्हें उठाए नहीं सा तो मैंने किया तो सुबह देखा नहीं हो पाए. अकी जो है तुम्हारा जो डिस्कवर करवा ली है कि वैसे यार यहाँ पे थोड़ा सा वो थ्योरी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना दोस्त, पुलिस बोल रहा है कि इसने कन्फेशन दिया और इसने हमें डिस्कवरी कराया. ना ही उसने कन्फेशन दिया था, ना ही उसने डिस्कवरी कराया था, लेकिन अब पुलिस ने क्या किया, वहाँ से दिखा दिया कि इसके बोलने पे हमने वहाँ से ड्रम निकाला. हो सकता है, नहीं सकता है. तब पुलिस क्या रेलिवेंट करवा देगी, डिस्कवरी तो रेलिवेंट करवा देगी ना. तो कोर्ट बहुत कॉशियसली देखता है इस चीज़ को कि क्या डिस्कवरी सच्ची में ऐसी डिस्कवरी है कि जो एक नॉलेज, स्पेशल नॉलेज से ही आना पड़ेगा. आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. मान लो लोता हिल से अगर कोई ड्रम दो निकाल के दिया, अब कोई लोता हिल में जब रख रहा है इतना ओपन में, तो पता तो किसी को भी चल सकता है. आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. तो ये नॉलेज किसी और से भी डिराइव हो सकता है पुलिस को कि भाई हमें दिखा है वहाँ पे ड्रम छिपाया हुआ है. आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. एकदम सीवियर टैंक के नीचे से निकाल के दिखाया प्लास्टिक. बहुत सारा पैसा आदमी क्या करता है, डर के मारे उसको सीवियर टैंक में डाल देता है अच्छी से प्लास्टिक लगा के, तब उसमें कुछ होता नहीं है पैसे में. तो वैसे डिस्कवरी करा है तो इससे नेगेटिव पॉइंट और नॉट, तो वैसे देखा जाता है. वी विल डिस्कस विद केस लॉज, है ना, डोंट वरी. नाउ okay, online, am I audible? Okay. Come to no, because coercion, see, okay, your question is, say for example, even if he is convicted or not, but if whether the other party who is coercing him, whether he will be liable for the coercion, you are asking that question. मान लो अगर नहीं पता चलो या नहीं चलो, तुम्हारी लाइबिलिटी उसकी लाइबिलिटी फिक्स कर रहे हो ना, जिसने एक्यूज को कोर्स किया उसकी लाइबिलिटी पूछ रहे हो ना. ओके, चलो उस सेक्शन में ही आ जाते हैं. कम टू 22 BSA. कम टू 22.
Confession caused by inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal proceeding. When irrelevant in criminal proceeding. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat, coercion or promise having reference to the charge against the accused person. Underline, having reference to the charge against the accused person. Proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporary nature in reference to the proceeding against him. Underline, and sufficient opinion court to give accused persons grounds would appear reasonable supposing making any advantage, avoid any evil, temporal nature in reference to the proceeding against him. So underline, in reference proceeding against him. Also underline person in authority, from a person in authority. The fourth line. Got it? Provided that if the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat, coercion or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant. Underline, if such inducement, threat, coercion, promise, opinion of the court fully removed, it is relevant. Okay, next, further provided further that if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequences of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining, or when he was drunk, or because it was made in answer to question which he did not have answered, whatever may be the form of those questions, because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. Now see, section 22 impliedly says that confession to third person is relevant. Well, confession to any person is relevant. It says or not? Yes. Online? क्या ये impliedly ये बोल रहा है नहीं बोल रहा है? ये confession किसी को भी दो relevant है? बोलो online. Only कि true students are there in online. इतना सारा बच्चा तो है. इसलिए तुम लोग के साथ वो ट्रीटमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेप मदर ट्रीटमेंट करता है कोई टीचर, बोलता नहीं अच्छा कोई ठीक है वो गोमे पोन है ना तो बुझी पैसा नहीं पता देखो ना रेट 22 पर 22 22
कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ओके. So what do you mean by inducement? And inducement must be from a person who is an authority. And you got induced because you have an impression that you will gain some advantage or there will be some evil which can be avoided. Say for example, आप लोगों ने मनी हाइस्ट देखा है. मनी हाइस्ट में जब उसको बोला जाता है कि तुमको ये दे देगा, हम तुमको ये दे देगा, बताओ, कन्फेस करो, आई विल गिव यू दिस 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 दिस, वी विल रिड्यूस योर जेल टर्म. आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो अगर एक उसको बोला जाए कि गिव मी, सपोज एक आदमी है, जेल अथॉरिटी है, क्या है, नॉट पुलिस, जेल अथॉरिटी है, ठीक है. अब जेल अथॉरिटी वाला आदमी उसको बोल रहा है कि भाई बताओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा बुक रिकमेंडेशन हम लोग लिख देगा, तुम्हारा पनिशमेंट जो है वो कम कर देगा, कन्फेस, बताओ. और उसने अगर कन्फेशन दिया तो वेदर इट इज कम अंडर इंड्यूसमेंट और नॉट? ऑनलाइन, ऑनलाइन. तुमको भगवान सब अच्छा कर देगा तुम्हारे साथ, भगवान तुम्हारा सब अच्छा करेगा, भगवान पे भरोसा रखो, हम बोल रहे हैं ना, हम तुम्हारे लिए पूजा करेगा, भगवान तुम्हारा सब अच्छा कर देगा, कन्फेस करो. उसने कन्फेस कर दिया, वैसे इट इज द इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस. अरे तुम्हारे ভগবানে আল্লাহ সব ভাল করে দিব, তো কনফেস কর. জেলারে কলে আল্লাহ তোক সব ভাল করে দিব, তো কনফেস করে নাও. वही कन्फेस করে দিল. पर्सन अथॉरिटी तो है, लेकिन इससे उसका इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट क्या वो इंसान इससे कुछ उसको लग रहा है क्या, मतलब क्या वो इंड्यूस हो रहा है क्या इसमें? बात समझो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ है? नहीं है ना, भगवान के लिए बोल रहा है, इंड्यूसमेंट कहाँ है? पर्सन इन अथॉरिटी ऐसा कुछ बोल रहा है जो वो अपने अथॉरिटी से करवा रहा है, या वो इंप्रेशन पर है कि ही हैज द अथॉरिटी टू डू दैट. भगवान का अथॉरिटी तो उनके पास नहीं. अगर वो जेलर की अथॉरिटी से बात कर रहा है तब इंड्यूसमेंट हो सकता है. अब गेटिंग माय पॉइंट आउट? एक आदमी को 4 आदमी पकड़ लिया, पकड़ के उसको गोली मारने के लिए बोला, सच सच बता दो क्या हुआ, नहीं तो गोली मार देंगे. और उसने बोल दिया कि हाँ मैंने किया, ठीक है ना. एक को बोला कि गोली मार देंगे, बोल, कोर्शन, थ्रेट, विल किल यू, से ही कन्फेस्ड एवरीथिंग. He confessed everything. Whether it is confession, yes it is confession, but whether it is relevant, no, because it is under threat. Now the person who is there, he is an authority to give threat or not? He has the authority to give threat or not? उसके हाथ में बंदूक है या whatever. Are you getting a point or not? But here there is confession. Okay, he is saying कि I have committed this. There is threat also. But whether the threat is in the opinion of the court, which gives the accused the ground to a reasonable supposing that making it he would gain any advantage or avoid any evil. Whether here he can avoid any evil, though of a temporal nature. Yes, evil तो है, मर जाएगा वो, उस बात का डर से उसने क्या किया, बोल दिया. नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट, सिंपल बात है. नाउ आई विल गिव यू सम ऑफ द इंस्टांसेस. नाउ लेट मी नो कि वेदर इट इज कम अंडर सेक्शन 22 और नॉट, मीन्स वेदर इट इज रेलिवेंट और नॉट. ओके, नंबर 1, where the accused was told by the magistrate, where the accused was told by the magistrate, right? Where the accused was told by the magistrate, comma, where the accused was told by the magistrate, comma, within inverted comma, tell me where the things are. Tell me where the things are, and I will be favorable to you. Hello? Hello? Am I audible? क्या लिखा? Things are, and I will be favorable to you. Inverted comma, close comma. Or
इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, और कहाँ से, पहले से, या अल्लाह लिख ले भाई, तुम लोग मार दो हमको. टेल मी वेयर द थिंग्स आर एंड आई विल बी फेवरेबल टू यू, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा. और इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, और इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, और इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, you may get yourself into trouble. You may get yourself into trouble. You may get yourself into trouble. If you do not tell the truth, you may get yourself into trouble. And it will be worse for you. And it will be worse for you. Comma. Whether it hits section 22 or not. Yes, online. No. Whether it comes under inducement, threat, coercion, promise. Angana? Threat. What kind of threat here it is? Tell me where the things are and I will be favorable to you, or if you do not tell the truth you might get yourself into trouble and it will be worse for you. कैसे इंड्यूसमेंट हुआ? ये आम बात है ना, नहीं है? ये आम बात है ना, नहीं है कि सच सच बता दो नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा. सच सच बता दो नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा. सच बताओगे तो क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं. Neither it is threat nor it is inducement. There is no coercion here and there is no promise, because in the opinion of the court there is no impression in the part on the part of the accused that he will gain any advantage or he will avoid any evil. क्या अगर वो बोलता कि हाँ तुम ये बताओ, तुमको हम ये दे देंगे, तुम्हारे बच्चे को हम लोग रिलीज दे देंगे, तुम्हारे बच्चों को हम स्कूल की पढ़ाई दे देंगे, आर यू पॉइंट और नॉट? मुझे पैसा ना, तुम कन्फेस कर दो कि तुम्हारे बच्चे को हम ऑपरेशन करा देंगे, तुम्हारे बच्चे का किडनी का ऑपरेशन होने वाला है, 50 लाख रुपए लगे, हम दे देंगे. इट कैन बी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बिकॉज हाँ, इसमें तो एक सिंपल क्या बस सच सच बताओ बोल के बोला. टेल मी द ट्रूथ आई विल बी फेवरेबल टू यू एंड इफ यू डोंट टेल द ट्रूथ इट विल बी वर्स फॉर यू. मतलब इट शुड नॉट बी वैग. इट इज ए काइंड ऑफ वर्ड. इट्स ए मॉरल इंड्यूसमेंट. से फॉर एग्जाम्पल तुमको पकड़ के लेके गया, चलो हनुमान मंदिर ले जाके तुमको वहाँ बिठा दिया और बोला कि हनुमान जी का कसम खा के बोलो तुमने चोरी नहीं की, और वो जाके बोल दिया हनुमान जी का कसम खा के बोलता चोरी हमने किया है. भाई समझो ऐसा हो सकता है, नहीं सकता है? यही होता था पहले, खाओ कसम, तो कसम खा के बोल दिया हाँ चोरी किया है, तो क्या वो बोलेगा 22 के अंदर आएगा? ऑनलाइन नो, दो इट इज इंड्यूसमेंट बट इट इज मॉरल इंड्यूसमेंट. व्हाट? मॉरल इंड्यूसमेंट. तो मॉरल इंड्यूसमेंट डजंट कम अंडर सेक्शन 22. इट इज रेलिवेंट. समझा नहीं समझा? अगर हनुमान जी का कसम खा के उसने अगर बोल दिया कन्फेशन किया है तो वो कन्फेशन रेलिवेंट है, वो 22 को हिट नहीं करेगा. ओके ऑनलाइन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताओ. क्या चीज़ का? क्यों नहीं है? कौन सा वाला? ओके, हो सकता है इफ द चार्ज इज ऑन थेफ्ट. ओके, नाउ he raises a very substantial thing कि whatever the inducement may be, whatever the threat may be, promise or coercion may be, it must be in reference to charge.
write down the line, this point. Inducement, threat, promise, coercion, etc. in reference to charge. अच्छी बात है. अगर वो इन रेफरेंस टू चार्ज नहीं है, लिखा है इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन और प्रॉमिस इन रेफरेंस टू चार्ज. जस्ट द हेडिंग. The inducement, threat, promise, coercion should be in reference to the charge in question. Thus, comma, where a person charged with murder comma, was made to confess to a panchayat, क्या लिखा? Was made to confess to a panchayat which threatened his removal, THREATENED, which threatened his removal from the caste, for life, comma, क्या होगा? ये कन्फेशन रेलिवेंट होगा या नहीं होगा? वाई? यहाँ पे क्या थ्रेट नहीं है? आगे कोई सा? नाउ थ्रेटेड हुआ नहीं हुआ, बट whether the threatened is in reference to the charge or not. Threatened need to be in reference to the charge. Now the threatened is to expulsion from the caste. This is not the charge. Charge is what? Murder. अगर ये बोलता उसको कि तुम सच बता दो, तुम्हारा जो मर्डर केस जो है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, मतलब जो चार्ज आप पे लगा है उस चार्ज को लेके अगर आपको कोई एक इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस मिला है जिसके इंप्रेशन से आपको ये लग रहा है कि यू कैन अवॉइड एनी इविल और यू कैन gain any advantage, then in reference to the charge, in this example his removal from the caste is not in the threat is what? तुम लोग कास्ट से निकाल देगा, तो ये जो थ्रेट है इट इज नॉट इन रेफरेंस टू द चार्ज. तो इफ ही कन्फेस इवन आफ्टर दैट इट इज रेलिवेंट. तो क्या लिखेगा? द कन्फेशन वाज हेल्ड टू बी रेलिवेंट. Comma, for the threat had nothing to do with the charge. Yes or no? Threat had nothing to do with the charge. Now, the second ingredient in this particular provision is person in authority. Person in authority. Now, if you confess before me whether I am a person in authority, accused है, accused अपने उसके घर पे सिर्फ उसका दादाजी का चलता है. किसका? दादाजी का. अब अक्यूज जो है दादाजी के डर से कन्फेस कर दिया, तो क्या ये बोला जा सकता है कि पर्सन ऑथोरिटी है दादाजी? यस, यस. पर्सन इन ऑथोरिटी इन रेफरेंस टू सेक्शन 22 it talks about authority means police,
कांस्टेबल, क्लर्क्स, वार्डन्स ऑफ जेल, मतलब ये जो एक्यूज कहाँ रहे, जेल में रहेगा, थाने में रहेगा। तो यहाँ पे जो जो लोग उसके ऑफिशियल्स हैं, भले वो वार्डन हो या कोई भी हो, दिस ऑल आर पर्सन इन अथॉरिटी। बट ए प्राइवेट पर्सन, मतलब फॉर दिस पर्पज सेक्शन 22 पर्पज कि यू आर गिविंग अ कन्फेशन, बिकॉज थ्रेट किसी एक ऐसे इंसान से थ्रेट नहीं आ सकता, ठीक है ना। कोई आदमी तुमको गेन देना पड़ेगा ना, कोई तुमको भरोसा होना पड़ेगा ना, ये मुझे गेन देगा या इसको बोलने से मेरा ये इविल हट सकता है। कौन कर सकता है? जो अथॉरिटी में है उसका। ये तुम्हारी इंप्रेशन है कि जेल वार्डन है, जेल वाला आदमी है, अथॉरिटी में, उसके सामने कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो हियर नो है, क्यों नहीं होगा? बिकॉज हियर पर्सन अथॉरिटी who is engaged in the apprehension, detention, prosecution of the accused or is empowered to examine him. The empowered person who is empowered to apprehend him, detain him, examine him, make his trial, and all the person who is related to that. Say for example, जेल में कोई भी आदमी हो, जेल पर्सन, भले उसका वार्डन हो, वहाँ का कोई काम करने वाला हो, कोई भी हो, they all are person in authority. That's government official, magistrate, their clerks, police, constable, warden, are in custody of prisoners, prosecutors, attorney, etc. A purely private person cannot be regarded as a person in authority, even he is able to exert some influence upon the accused. Even if he can exert influence, but a private person, हाँ, गवर्नमेंट पर्सन मतलब ये मान लो कि अब कोई आदमी गवर्नमेंट पर्सन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है। समटाइम्स ही मे नॉट बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट वट एवर ही इज डूइंग इन रेफरेंस टू व्हाट? सी, इफ यू आर नॉट अ गवर्नमेंट पर्सन, देन यू कैन फेवर एनी पर्सन ना। एज अ अथॉरिटी यू कैनॉट फेवर एनी पर्सन ना। तो इफ अ कन्फेशन इज गिवन टू अ पर्सन who is an authority, then only the question of inducement, threat or promise will come into picture here, otherwise not. क्योंकि तुमको एडवांटेज कब मिलेगा? एडवांटेज कब मिलेगा? मतलब जब तुम्हारे दिमाग में कब आएगा कि मुझे एडवांटेज मिलेगा? जब वो इंसान एडवांस देने लायक होगा तुम्हारे हिसाब से। समझा नहीं समझा? तो मान लो कि अगर तुम लोग ऑल टुगेदर इससे बात करते हो कि मान लो 10 आदमी ने मिलके एक आदमी को गन पॉइंट पे कन्फेशन दिया, तो ऑब्वियसली वो जाके कोर्ट में बोलेगा ना कि मैंने कन्फेशन दिया ही नहीं। आर गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? बट हियर 22 टॉक्स अबाउट, नॉट ओनली टॉक्स अबाउट पुलिस, इट टॉक्स अबाउट पर्सन इन अथॉरिटी, whomsoever it may be. But if there is a inducement, threat or promise from the person in authority, then it is not relevant. In the preceding section you will find कि it is explicitly given कि पुलिस को नहीं दे सकता। Are you getting a point or not? But किसी और अथॉरिटी को तुम दे सकते हो। Correct? Now come to the proviso. Provided that if the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat or coercion or promise as in the opinion of the court, fully removed, then क्या है इसका एग्जाम्पल? ऑनलाइन पर्सन अथॉरिटी के मामले में बताओ। Give me an example where threat, promise or any kind of coercion been removed, fully removed. Online? पर्सन रिलीज ऑन बेल, क्या पता वो जो बेल में है वो तो अभी तक छूटा नहीं है ना, तो बेल में उसको अगर इस तरह का कोई पर्सन अथॉरिटी इंड्यूसमेंट दे तब तो हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि इंड्यूसमेंट खत्म हो गया, थ्रेट नहीं है। तो जैसे तुमने बोला कि कोई इमीडिएट थ्रेट था, अब वो थ्रेट खत्म हो गया, लाइक गन था, अब गन नहीं है ना। नाउ इज देयर इज नो अंडर थ्रेट कि ही विल बी किल्ड, देन या इफ अ पर्सन ब्रॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, they presume or not कि all this kind of threat has been removed. Even after that if he give confession, that is relevant. Like पुलिस है लेकिन सामने मैजिस्ट्रेट भी है। Are you getting a point? See, 22 एक अगर उसके बाद का जो सेक्शंस मिल रहा है ना आपको, वो 22 से ही जन्म होके जा रहा है। 22 इज अ बिगर थिंग, दिस गिव्स अ ब्लैंकेट थिंग। Okay, confession by any person. If a magistrate, if you are giving a confession, and if it is found that the confession was not made voluntarily, even if it is a 164 का statement, not relevant. Yes or no? कभी कभी ये होता है ना कि मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दे दिया और ट्रायल में जाके बोल दिया कि मैंने अंडर थ्रेट दिया था, and if he can prove that it was not voluntarily, not relevant. So meaning thereby is कि whether a confession is voluntary or not, it depends upon the mind of the accused, कि at the time of giving confession what was in his mind, what a reasonable man can think at that time. Are you getting my point or not? So there is no straight secret formula कि यही inducement है, यही threat है. Yes. सपोज नोकोले था, जो उसको बता दिया जाता है, वारंट किया जाता है, यू आर नॉट बाउंड टू गिव कन्फेशन, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। समटाइम्स इट माइट हैपन कि उसको कभी वार्न ही नहीं किया गया। यस, बट इट कैन बी रिबट और नॉट। यस, द कोर्ट ऑब्वियसली एक जजमेंट अगर आया है तो कोर्ट हमेशा उसको सही है बोल के ही प्रिज्यूम करता है ना, लेकिन उसको तुम रिबट तो कर सकते हो। इट कैन बी रिबटेड और नॉट, ये होता है। नाउ अगर एक जुवेनाइल ने कन्फेस किया तो होगा क्या? क्या एक जुवेनाइल कन्फेस कर सकता है? गुड क्वेश्चन। वेदर ए जुवेनाइल कैन ऑल्सो कन्फेस? हाँ, say for example there is a juvenile justice case, so whether a juvenile can also confess? Obviously confess मैजिस्ट्रेट के पास confess कर सकता है क्या? मतलब बाहर एग्जैक्टली कभी तुमको अगर कोई भी चीज़ इस तरह से पूछा जाएगा कि एक जुवेनाइल कन्फेस कर सकता है नहीं कर सकता, तो आप ये सोचोगे ना कि बार कहाँ है या क्या बार हो सकता है। से फॉर एग्जांपल आपको प्रोविजन नहीं पता, तो क्या बार हो सकता है? कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो छोटा है, ये सोचोगे ना। तो वो छोटा है बोल के उसका पनिशमेंट भी वैसा ही है ना? नहीं, उसको जितना पनिशमेंट मिलेगा उसके ब्रेन के हिसाब से ही मिलेगा। अगर वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है तो वो वॉलंटरीली अपने अगेंस्ट में क्यों विटनेस नहीं हो सकता? इफ he can be a witness against other, why can't be a witness against himself? He is voluntarily made such a statement. We are talking about the relevancy of something. We are not saying कि on the basis of this conviction can be made. Are you getting my point or not? But yes, why not a juvenile can confess? He can. Okay? Material निकालो तो एक बार। ओके,
मान लो कि एक कोई भी कन्फेशन था, वो इंड्यूसमेंट में लिया गया, थ्रेट में लिया गया, मान लो, या मान लो एक आदमी जब सो रहा था तब कुछ बोल दिया, या ड्रंक था तब कुछ बोल दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है वॉलंटरीनेस। ये सुनो, अगर वॉलंटरीली कोई चीज़ नहीं दिया गया है तो वो कन्फेशन तो नहीं होगा, बट इट कैन बी रेलिवेंट एज अदरवाइज। Are you getting my point or not? If the statement shows the motive, then it may be relevant as motive, conduct, res geste. Are you getting my point? Circumstantial evidence also sometimes. Are you getting my point or not? If a confession is coupled with any inducement, threat or promise, it is not relevant as confession. But if the particular statement or particular instances can be relevant in any other section, then it will be relevant for that purpose. Are you getting my point or not? But here provided further says कि if a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or is consequence of deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk. Say for example, तुमको पता ही नहीं है कि CCTV कैमरा लगाया हुआ है, तुमको पता ही नहीं है CCTV कैमरा लगाया हुआ है और तुम बोल दिया, हो सकता है ना, इंड्यूस क्यों दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला, समझा नहीं समझा? आर गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? यू आर ड्रंक, या तुमको कोई नशा सामान दे दिया, नशा ने कुछ भी बोल दिया तुम, तो वो भले ही कन्फेशन के हिसाब से रिलेवेंट नहीं हो, बट वो कहीं अदर पर्पस के हिसाब से रिलेवेंट हो सकता है। नाउ confession, extrajudicial confession must be voluntarily, not caused by any inducement, threat or promise. Yes? See the comment section, direct comment section. Confession may be divided into two classes, judicial and extrajudicial. Judicial confessions are those which are made before magistrate or court in the course of judicial proceedings. Extrajudicial confessions are those which are made by a party elsewhere than before a magistrate or a court. But if the confession is not before a magistrate or court, it is extrajudicial. Okay? Extrajudicial confessions are generally those made by a party to or before a private individual, which includes even a judicial officer in his private capacity. मतलब से फॉर एग्जाम्पल एक मैजिस्ट्रेट है लेकिन वो प्राइवेट कैपेसिटी में अपने घर आया था, तब उसको तुमने कन्फेशन दे दिया, तो इट इज़ नॉट जुडिशियल कन्फेशन, अगेन इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. सो मीनिंग दे आर बाय, इफ ए कन्फेशन नीड टू बी जुडिशियल, देन फर्स्ट इट नीड टू बी फॉर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग. मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर आपने बोला देन ओनली. प्राइवेटली उसके घर पे वो जब चाय पी रहा था जाके बोल रहे हो तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल ही होगा. समझ में आ रहा है? सुबह उठा ही था चाय पीने के लिए, आगे बोलने के लिए मैंने मर्डर किया है. नेक्स्ट ये पेज पढ़ लेना रे भाई. कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर. No confession made to a police officer shall be provided as against a person accused of any offence. Okay? No confession made to a police officer shall be proved. Underline. No shall be proved. मतलब shall not be proved. मतलब देखो relevant तो है लेकिन उसको तुम प्रूव नहीं कर सकता, मतलब उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है. Yes or no? निकिता बुझते पारছো তুমি? Confession to police officer is not admissible because you cannot prove it. The police cannot prove it. Prove it मतलब उसका कोई एविडेंस नहीं दे सकता, जाके बोल नहीं सकता इसने हमें बोला था. समझा या नहीं समझा? नेक्स्ट. No confession made by any person while he is in the custody of a police officer unless it was made in the immediate presence of a magistrate shall be proved against him. Again, no confession while in the custody of a पुलिस. बट पुलिस जब मजिस्ट्रेट के पास लेके जाता है तो पुलिस का कस्टडी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट का पावर ज़्यादा होता है. ये छोड़ो, तो वहाँ पे बोला जाता है अगर इफ इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट देन अलाउड. बट पुलिस कस्टडी में है और मजिस्ट्रेट नहीं है और कन्फेशन दिया है तब रिलेवेंट नहीं होगा. इसी चीज़ के ऊपर आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है, जस्ट पुलिस कस्टडी के ऊपर. लास्ट टाइम पूछा है हमारे बच्चे को, उसको ये पूछा कि मान लो एक्यूज था, उसके ऊपर एक्यूशन है कि उसने रेप किया, मर्डर किया और वो पुलिस लॉकअप में बंद है.
उसकी बहन गई खाना देने के लिए, तो जब खाना दे रही थी उसको, ठीक है, तो उसकी बहन और उसने बात किया। बात करते तो बहन को उसने सारी बात बोल दी कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने गुस्से में मार दिया, ऐसा हो गया। जब वो बहन रिटर्न आ रही थी तो पुलिस वाले ने बुलाया, इधर आओ, खाना खिला दिया ना? खिला दिया। क्या बोला उसने? तो बहन ने सारी बात बोल दी कि ऐसा 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 बोला उसने, बॉडी वहाँ छिपा के रखा है, सब बोला। नाउ इन द ट्रायल पुलिस वांट टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड टू हिज सिस्टर। नाउ पुलिस वांट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। क्या हो, ये उनको पूछा गया, बात समझा नहीं समझा? क्या हो? नहीं, मतलब उसने बोला है कि मैंने मारा है, मार के ऐसे बोला है, उसकी बहन को उसने सारी बात बोल दी, और बहन ने पुलिस को बोल दी कि मेरे भाई ने बोला है कि उसी ने उसका मर्डर किया है, रेप किया है, उसका बॉडी काट के वहाँ फेंक दिया है। गेट टू डिस्कवरी, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कन्फेशनल स्टेटमेंट। तुम बोल रहे हो कि बहन ने विटनेस दे दिया? नहीं, भले ही डिस्कवरी हो जाए दोस्त, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या होगा? ये रेलिवेंट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बहन को उसने दिया है, कोई बात नहीं, पुलिस को नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने जब बहन को दिया, एक्स्ट्रा जुडिशियल है, लेकिन व्हेन व्हाइल ही इज इन द पुलिस कस्टडी और नॉट, नॉट रेलिवेंट। मतलब नॉट, इट कैनॉट बी प्रूव्ड, it cannot be proved, not admissible. He cannot prove the statement because it is in the police custody. Are you getting a point or not? Next. मान लो कि पुलिस लॉकअप में बैठा है, पुलिस लॉकअप में नहीं बैठा, पुलिस लॉकअप में एक्यूज्ड है, ठीक है, मजिस्ट्रेट आया, होता है कभी कभी पुलिस, मतलब जेल तक भी मजिस्ट्रेट जाता है, थाने तक भी जा सकता है। मान लो थाने में मजिस्ट्रेट चला गया और मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर दिया उसने, तो रेलिवेंट होगा नहीं, बट ही इज इन द पुलिस कस्टडी। There is an immediate presence of the magistrate or not? अगर उसको ये वाली बात नहीं पता है मजिस्ट्रेट है तो मतलब नहीं है, तब तो होगा ही नहीं रेलिवेंट, यू आर राइट। बट वो मजिस्ट्रेट इन द पर्सनल कैपेसिटी नहीं गया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के हिसाब से गया है। समझी नहीं समझी मेरी बात? ऐसे ही घूमने गया तो प्राइवेट कैपेसिटी में गया है, तब तो मजिस्ट्रेट नहीं होगा ना। मान लो अगर बरखा अग्रवाल अगर स्कूटी में घूम रही है तिनसुकिया में जज बनने के बाद, तो जब तुम स्कूटी में घूम रही हो तुम प्राइवेट कैपेसिटी में घूम रही हो ना। बात समझी नहीं समझी? समझी? तो उस समय कोई तुमको कुछ बोल रहा है तो बरखा अग्रवाल को बोल रहा है, नॉट जीएमएफसी को बोल रहा है। क्या वो रिलेवेंट ही नहीं होगा ना फिर। मान लो कि उसको पता ही नहीं है मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट ऐसे गया और वो जाके मजिस्ट्रेट के साथ, तो इट इज इन द पुलिस कस्टडी, बट द पुलिस कस्टडी विल रिमूव व्हेन इट इज इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हाट शी सेड कि द पर्सन मस्ट नो कि ही इज अ मजिस्ट्रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं प्रूव कर सकता। अब मान लो पुलिस से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो जो भाई बहन बात कर रहे हैं पुलिस से रिकॉर्डिंग करके रखा है, ठीक है ना, स्मार्ट पुलिस, ठीक है। नाउ पुलिस हैव द रिकॉर्डिंग वेयर ही कन्फेस्ड बिफोर हिज सिस्टर। नाउ वेदर पुलिस विल बी अलाउड टू प्रूव द डॉक्यूमेंट? आंसर इज नो, outrightly no, because rule of evidence says it is not based on logic. लॉजिकली तो होना चाहिए ना, बट रैशनली मैं नॉट, क्या पता पहले ही मार के बिठाया होगा फिर वीडियो बनाया होगा, हो सकता है नहीं
हो सकता है नहीं सकता है? भाई पुलिस का थ्रेट, तुम तो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है ना, तुमको दिखा नहीं है कभी जीवन में, सुना नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ना नहीं पुलिस कस्टडी में ना। Provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered may be proved. As relates distinctly, underline, पहले इसका अलग अलग सेक्शंस था, अब एक ही सेक्शंस के अंदर डाल दिया, अच्छा किया। तो कन्फेशन टू पुलिस सेक्शन 22, कन्फेशन टू इन द पुलिस कस्टडी 22, डिस्कवरी 22, 1 2 3, प्रोवाइजो 23, सॉरी 23 प्रोवाइजो, सॉरी 23। समझा नहीं समझा? अब नाउ इसके ऊपर आप लोगों ने कभी पढ़ा है डिस्कवरी के ऊपर? राइट डाउन, पुलुकुरी कोटाया वर्सेस एम्परर। पुलुकुरी, PULUKURI, पुलुकुरी, कोटाया, KOTTAYA, कोटाया वर्सेस एम्परर, 1947 AIR। So there was a statement of the accused person where it includes some confessions also, ठीक है ना? तो they were charged for the murder and they got convicted also. Now what was the statement on the basis of which they got convicted? The statement was, one of the statement of one of them was, I, सुन लेना पहले, I, कोटाया and others beat Shivaya and Subhaya to death। ठीक है, पहले क्या बोला? मैं और कोटाया, I, कोटाया and others, I, कोटाया and others beat Shivaya and Subhaya to death। I hide the spear and my stick in the rick of my village। Okay, I will show if you come। बात पूरा सुनना। पहले क्या बोला? मैंने, कोटाया और बाकी लोगों ने मिलके शिवाया और सुबैया को जान से मार दिया। फिर बोला आई हाइड द स्पेयर एंड स्टिक इन द रिक ऑफ माई विलेज, घास में, खेर में कहीं छिपा कर रख दिया। आई विल शो यू इफ यू कम। We did all this at the instance of Kotaya। We did all this at the instance of Kotaya। समझ में आया? इसमें कन्फेशनल पार्ट कौन सा है? कि आई, कोटाया एंड अदर्स बीट शिवाया एंड सुबाया टू डेथ, ये कन्फेशन है। उसके बाद जो बोला कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ उसको मैंने छिपा के रखा है। It's a statement which leads to discovery, but not a confession. Are you getting my point or not? Okay. Another accused said, I stabbed Shivaya with a spear। I stabbed Shivaya with a spear। I hide the spear in a yard in my village। I will show you the place। क्या बोला? कि मैंने स्टैब किया स्पैर से शिवाया को, चलो मेरे साथ दिखाता हूँ कि मैंने उसको यार्ड में कहाँ छिपा के रखा है। ठीक है। नाउ
if you go through the sections, so what you will find कि which part is relevant, which part is not relevant. In the first paragraph, but the first statement, कि I, Kotaya and others kill Sibaya and Subaya to death, it is not relevant as a confession. Yes or no? Sir, during last in particular same crime or for same offense, the confession relevant. क्या होगा? Same crime or the same offense, the confession to relevant. Okay. क्या नाम है? Neither Islam is saying if they all are in a joint trial, then their statement will be relevant. To a police officer. हाँ? तुम accomplice की बात कर रही हो ना? Accomplice is a competent witness. Yes, there is no bar. Yes, in fact, you go through the section 30 also, it has the essence of that in the joint trial. But here, if during in the police custody, are you getting my point or not? Only the discovery part, not the confessional part. Okay. Now पहले तो अलग अलग सेक्शन था. Now if you go through the section 23(1), 23(2) with the proviso, तो इसका मतलब क्या है? 23(1), 23(2) के बाद प्रोवाइजो में ये वाली बात दी हुई है. मतलब क्या? बात को समझना. Initially it was section 26, 27 or not? Yes. Now he's in the initial part it is saying कि पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है. फिर बोला गया कि पुलिस कस्टडी में दिया हुआ भी रेलिवेंट नहीं है. उसके बाद प्रोवाइजो में बोला कि भले ही वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो डिस्कवरी हुआ, आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहले भी इसको प्रोवाइजो से ही रीड करते थे हम लोग. अलग अलग सेक्शन होने के बाद भी हम लोग प्रोवाइजो के हिसाब से रीड करते थे. अभी इसको एक प्रोवाइजो दे ही दिया. आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो डेट जो जनरल रूल है उसका ये प्रोवाइजो है. दो द कन्फेशन इज नॉट रेलिवेंट बट द डिस्कवरी पार्ट इज रेलिवेंट. नाउ इन दिस केस कोर्ट ने क्या बोला, पहले इसको सुन लेना. When we say fact discovered, the word is here ना, fact discovered. Phrase fact discovered है ना, नहीं है. Fact is deposed to be discovered. Now fact, when we say fact discovered, whether it means that the object produced, क्या मिला? जैसे कि एक आदमी के स्टेटमेंट से फील्ड में गया, वहां से ड्राम निकाल के ले आया. ठीक है, तो प्रोड्यूस क्या हो? ड्राम. तो वेदर द ड्राम पर से कम्स अंडर द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट और समथिंग एल्स ऑल्सो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? माय पॉइंट इज कि फ्रॉम योर स्टेटमेंट वी वेंट टू दैट प्लेस, वी डिग दैट प्लेस, वी गॉट द ड्रम्स. Now only the drum, the discovery, the fact discovered, the phrase fact discovered is just, it only says the discovery, that is the only object produced or something else. Are you getting my point or not? नहीं समझा? सिर्फ जो ऑब्जेक्ट आया है वही रेलिवेंट है ना, वो जगह जो उसकी नॉलेज में है वो भी रेलिवेंट है. द प्लेस, हिज नॉलेज अबाउट द प्लेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो हियर it is also important, it is also relevant कि क्या, also the place from which the object is produced and the knowledge of the accused as to this and the information given must relate distinctly to this fact. Meaning thereby जो जगह वो भी डिस्कवरी हुआ, ये भी एक फैक्ट है जो डिस्कवर हुआ नहीं हुआ. अगर हम लोग फैक्ट डिस्कवर करते हैं तो फैक्ट में क्या है? अक्यूज को पता है इस बारे में, भूल गया हम लोग कन्फेशन. अक्यूज को पता है इस बारे में, रेलिवेंट है. अब वो उसको जो पता है वो जगह, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट, ये जगह चुका और उस जगह से जो सामान मिला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दीज ऑल आर कम्स अंडर फैक्ट डिस्कवर. ये वाला बात याद रखना बस. हाँ, तो फिर इस सेक्शन के हम लोग पढ़ेगा ही नहीं. डिस्कवरी नहीं हुआ मतलब फिर डिस्कवरी कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना. समझ में आया नहीं आ रहा है?
तुमने बोला कि वहाँ पे जाके कुछ मिला नहीं, तो ये सब क्या है? ये एविडेंस है ना? नहीं, इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो इट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस होगा ही नहीं तो कहाँ से कलेक्शन होगा? तुमने बोला कि मर्डर करके मैंने लोताहिल में डाल दिया, पूरा लोताहिल खान दिया, नहीं मिला तो नहीं हुआ ना, फैक्ट डिस्कवर्ड नहीं हुआ ना। मतलब पुलिस तुमको बहुत डंडा मारेगा, ठीक है, लेकिन पुलिस के सामने तुमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिसका कोई रेलिवेंसी है। बात समझ? तुम बोले हम तो बोला ही नहीं था पुलिस को, तुम तो यही बोलेगा ना, पुलिस को बोला ही नहीं, हो गया, मारेगा पुलिस, बस हो गया। बात समझा नहीं समझा? कोर्ट में तुमने नहीं बोला है ना, पुलिस को एविडेंस तुम नहीं देते हो ना। और मान लो अगर तुमने पुलिस को झूठ बोला, वो किया, देन देयर आर सम प्रोविजंस where you are bound to give answer, true answer, you give some wrong answer to a public authority, but giving false evidence will not come under this picture. हाँ, वहाँ पे जो मैं प्रोविजन सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ अभी 172 या 78 whatever, when you are bound to give true answer and you give any wrong answer, then it's a different thing. Now, find out the admissible part of the statement. कलरफुल आदमी देखो, find out the admissible part of the statement. An accused stated to police. An accused stated to police. ऑनलाइन लिखो भाई, ऐसी चला दो। An accused stated to police, inverted comma start, I have buried the property, I have buried the property stolen by me, I have buried the property stolen by me in the field, full stop, in the field, full stop, I will show it, I will show it, inverted comma close, full stop. Which one is the admissible part? Find out. देखो इसमें एडमिसिबल पार्ट कौन सा है? State I have buried the property stolen by me in the field, I will show you, है ना? तो कौन सा जो पार्ट है वो एडमिसिबल पार्ट है। तुम्हें की बोला कौन तो एडमिसिबल हो? এইটো এডমিসিবল হয় আৰু আই হেভ বাৰিড এইটো হয় আৰু কোনটো নহয় তেতিয়াহ'লে? ঠিক আছে, তো কোনটো নহয় এইটো কোৱা এতিয়া মোক, ভয় নোখোৱাকৈ কোৱা কোনটো নহ'ব ইয়াত। গোটেইটোৱে হ'ব। ओके, यस, क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव छेत्री। इसमें से कौन सा जो है वो एडमिसिबल नहीं है?
सर एडमिसिबल কি এটা হলো অ্যাডমিসিবল এটাও না ये स्टेटमेंट विच लीड्स टू डिस्कवरी ना, इसका स्टेटमेंट है जिससे डिस्कवरी होगा ना, तो यहाँ पे कौन सा एडमिसिबल पार्ट है और कौन सा एडमिसिबल पार्ट नहीं है? यस रश्मि, कौन सा नहीं है? यस, वेरी गुड. The part which is not admissible is the confessional part, na? Which one is the confessional part? Stolen by me? Yes or no online? Stolen by me, it is the confessional part. Apart from that, all other things are admissible, but this that is stolen by me, it's a confession, though that's why it is not admissible. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बात? ना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें ये वाला पार्ट में डिस्कवरी में जो आदमी कंफ्यूज होता है वो यही होता है कि सिर्फ जो प्रोडक्शन हुआ कि वही रेलिवेंट होता है. नहीं, उस इंसान का जो नॉलेज है, उस अक्यूज का जो नॉलेज था कि वो सामान वहाँ है, वो भी रेलिवेंट है. और जो प्लेस जहाँ मिला वो प्लेस भी रेलिवेंट है, और जो सामान मिला वो भी रेलिवेंट है. जिससे एक चेन बन रहा है, नहीं बन रहा. फिर उसको पूछिए तुम्हें कैसे पता यहाँ है? दो कन्फेशन इज नॉट रेलिवेंट, बट वो अदर एविडेंसेस मिलेगा नहीं मिलेगा. और गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? तो इज अ चेन. ओके, नाउ say for example a person who is not in the custody of a police officer, okay, and from his statement it leads to discovery, then a person who is not in the custody of a police and from his statement it leads to discovery, so whether it is relevant under this section. याद रखना, किसी और की इंफॉर्मेशन भी इससे भी तो आदमी डिस्कवर कर सकता है या नहीं कर सकता है. तुमने जाके बोला कि सर हमने वहाँ देखा है डेड बॉडी पड़ा हुआ है, सर हमने वहाँ देखा वो चोरी का जो सामान आप लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ है, वो गणेश जी की जो मूर्ति चोरी हो गई थी वो वहाँ मिला है. हो सकता है, नहीं सकता. लेकिन 27 में वो आएगा क्या? मतलब आई मीन टू से 23 प्रोवाइजो में वो आएगा क्या? नहीं आएगा. याद रखना, अगर एक अक्यूज्ड खुद जाके बोलता है पुलिस को कि हाँ मैंने मर्डर किया, चलिए मैं दिखा देता हूँ वही है, तो उसने जब डिस्कवरी करवाया तो वो पुलिस कस्टडी में नहीं था. इफ द फैक्ट कैन ऑल्सो प्रूव्ड, अगर आपको फैक्ट से ये मिलता है, कोई भी क्वेश्चन के फैक्ट से ये मिलता है कि अक्यूज जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं था जब उसने ये वाली बात बोली विच लीड्स टू डिस्कवरी, he make confession to police officer and he make confession in police custody, both are different or not? One may be with police but he may not be in the police custody. Yes or no? So if the situation is like a accused went to police and said कि I committed murder, let's go, I will show you where I have kept, that's fine. So he was not in a police custody. Are you getting my point or not? तुमको पकड़ लिया, पकड़ के तुमको पूछताछ कर रहा है, उसके बाद डिस्कवरी हो रहा है, समझा नहीं समझा? This section is for that situation when you are in a police custody. And when you come under police custody, my dear, when you got arrested, detained, then only it says कि you are under police custody. तुम थाना में ऐसे गया घूमने के लिए, तुम पुलिस कस्टडी में नहीं है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मेरी बात सुनने? ये बंदी था चीज समझ में आ रहा है? तो कस्टडी में तुम अगर है तो तब डिस्कवरी अगर हो रहा है
डिस्कवरी रिलेवेंट है अंडर सेक्शन 23 प्रोवाइजो, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। नाउ consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial of for same offense. Come to illustration number A. A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of his confession as against B. But in the second illustration C, A is on his trial for the murder of C. There is an evidence to show that C was murdered by A and B, and that B said A and I murdered C. This statement may not be taken into consideration by the court as against B is not jointly tried. Now see, जैसे कि तुमने बोला था ना, आई कोटाया एंड अदर्स, अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने ये स्टेटमेंट दिया होता, ठीक है, जहाँ पे वो खुद का कन्फेशन तो कर रहा है नहीं कर रहा, साथ में किसी और को भी इम्प्लीकेट कर रहा है, और उन लोग अगर जॉइंट ट्रायल में अगर ये वाला बात बोल रहे हैं, देन इट इज रेलिवेंट, द कन्फेशन विल बी रेलिवेंट अगेंस्ट अदर को-एक्यूज्ड आल्सो. बट इट इज सेइंग कि आई वाज देयर बट आई डिडंट किल हिम, आई सॉ अंगना एंड बरखा किलिंग हिम, whether it comes under 30. Are you getting my point or not? वो अपना स्टेटमेंट ये दे रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैं उनके साथ था, उसने और उसने मिलके गोली चलाई है, मैंने कुछ नहीं किया. तो क्या ये सेक्शन 24 के अंदर आएगा? ऑनलाइन बात समझो. यहां पे एक आदमी अपने आप को पहले कन्फेस करना पड़ेगा, देन ओनली, that too also in a joint trial. If the trial is not joint trial, then also his statement cannot be used, his confession statement cannot be used against other co-accused, because accomplice is a competent witness. Accomplice is a competent witness, but the rule of prudence says कि his testimony need to be corroborated with some independent evidences. So here section 30 talks about confession of a co-accused against a co-accused. Its relevancy, it is relevant when it is made in a joint trial. Are you getting a point or not? Online, when more persons than one are being tried jointly, underline tried jointly, for the same offense, underline same offense, and a confession made by one of such persons, and a confession made by one of such persons affecting himself, underline, and some other, affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession as against such other persons as well as against the person who makes such confession. समझ में आ रहा है? उसके अगेंस्ट में लेगा तो और भी जो जॉइंट ट्रायल में है, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि सेम ऑफेंस किया है, उसके अगेंस्ट भी प्रूफ किया जा सकता. Explanation says, offences as used in this section includes the abetment of or attempt to commit the. It includes abetment and attempt also. Do you know abetment, attempt क्या होता है? पढ़ा है? जाकिर अबेटमेंट का एक तो एग्जांपल देना. क्यों पंकज बोल रहे? अबेटमेंट का একটা ঘুষা মারি না পাহড়ি গৈছোঁ, কথা বল নেকি পাহড়ি গৈছোঁ? ये ऐसा थोड़ी ना बात है पाहड़ी গৈছোঁ. तुम बोलेगा सर मैं हागियो पाहड़ी गो, हंसो मत, ये इस तरह का बात है. अबेटमेंट क्यों बोलेगा भाई? बोलो.
बोलो, अबेटमेंट बोलो, अबेटमेंट करना बोलो, क्या होता है? পঢ়াই পঢ়িছে না মোৰ কি বুলি কৈছিলোঁ মই? এবেটমেণ্ট বুলি ক'লে কোনে এবেটমেণ্ট কৰে? আদাৰ পাৰ্চনে কৰে, বেলেগ এজন পাৰ্চনক কৰে, এবেট কৰে, হয়নে? মানে কি হয়? নিজৰ হাতেৰে মাৰিব নিবিচাৰে, বেলেগক উচকাই দিয়ে নাই, সেইটো আছিলে নাই? চিকা মাৰি হাত কোনে গুন্ধাব? বেলেগক কৈ দিয়ে, হয়নে? আছিলে নাই মক্কেল? ইনষ্টিগেট কৰা, कंस्पायर टुगेदर टू एड, है ना? नहीं जाओ मार तो 500 रुपये देगा, अबेटमेंट हुआ नहीं हुआ? भाई मार मार मार, जुड़ के मार, अबेटमेंट हुआ नहीं हुआ? समझ में आ रहा है नहीं? नाउ तो भले ही वो अबेटमेंट हो या अटेम्प्ट हो, इट कम अंडर दिस परव्यू. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज कि a trial of more persons than one held in the absence of the accused who is absconded or who fails to comply with a proclamation issued under section 84 shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section. Nowadays पहले ऐसा था कि अगर कोई co-accused भाग गया है तो ट्रायल रुक जाता था उसका. अब ऐसा नहीं है, अगर कोई भाग भी गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है, तो विदाउट हिज प्रेजेंस ट्रायल चल सकता है. तो ये वही बता रहा है कि मान लो अगर कोई ट्रायल में नहीं भी है तो उसके केस पे भी ये कन्फेशन रेलिवेंट होगा. मुझे भाई साहब समझा नहीं समझा ये वाला पॉइंट, ट्रायल वाला पॉइंट? अनुष्या शर्मा, अनुष्या अब और जोर से चिल्लाएगा तो डिब्रूगढ़ सुन लेगा तुम्हारा पापा. माइक तो भी सही पहुँच होता है. तो मैं कोई ऐसू की कल बुझी पाला ना है. व्हाट इज द डिफरेंस ट्रायल में? कि पहले ऐसा होता था कि कोई अगर एब्सकॉन्डर है तो उसके अगेंस्ट पे ट्रायल चलता नहीं था, रुक जाता था, पहले उसको ढूंढता था. अब ऐसा नहीं है, एब्सकॉन्ड हो गया, विदाउट योर प्रेजेंस ट्रायल चलेगा. ठीक है, याद रखना है. नाउ कम टू सेक्शन. हो गया ये वाला बात? कन्फेशन थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया? आया. नाउ कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, क्या था? हाँ पढ़ा आता आगोदर दिसो मैंने. ठीक है, विच वन 24 का सरकारी. ओके, एक सेकंड. 24 में आओ एक बार. इसके इलस्ट्रेशन में क्या बोला है? ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड सरकारी फॉर द मर्डर ऑफ सी. ओके, इट इज प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी. देयर इज ए जॉइंट ट्रायल ए एंड बी. ठीक है, उन लोगों का एक ही ट्रायल चल रहा है. एक स्टेटमेंट दिया था ए ने जिसमें ये बोला था कि उसने और बी ने मिलके आई एंड बी मर्डर सी. तो इट इज कन्फेशन और नॉट कन्फेशन? तो इफ इट इज ए जॉइंट ट्रायल अगेंस्ट द सेम ऑफेंस देन क्या होगा? एज स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट बी ऑल्सो. But in the second example, it was not a joint trial, so that's why it cannot be proved. Are you getting a point? एक को तो हो गई, एक का कन्फेशन तो प्रूफ हुआ ही है. पहले तो उस कोर्ट ने, पहले तो प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ किया है कि इन्हें कन्फेस किया है, तभी उसको बी के अगेंस्ट प्रूफ करेगा. देखो इसने बी के लिए ही बोला. पहले तो ये प्रूफ करना ही पड़ेगा ना कि उसने कन्फेशन किया है, और उसके कन्फेशन में वो किसी और को भी इम्प्लीकेट कर रहा है जो अभी जॉइंट ट्रायल में है. ठीक है, चलता रहेगा. जब पकड़ा जाएगा उसको कन्विक्ट, अगर कन्विक्ट हो गया तो कन्विक्ट के हिसाब से देखेगा. अगर उसको एब्सकॉन्ड के समय अंडर ट्रायल के हिसाब से तो अंडर ट्रायल के हिसाब से ट्रीट करेगा. नाउ sorry, yeah, it is during a trial, not police officer. Okay, if it is before a police officer, then to obviously, because see my dear,
24 पढ़ो या 23 पढ़ो, ठीक है ना, इट मस्ट बी रेड विथ 22।